Hello everyone, welcome to JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the third part of the relation, the ailing planet. In this very relation, the writer explains to us that how can we save our earth, what should be our duty to conserve the resourcement of earth, which was very important for the upcoming generations of our planet. Let's see a textbook and know what the writer has suggested to us to save our earth. Let's see our textbook from page stanza 11. Article 48 of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the sanctuary. As the poet said, as the writer said earlier, that in Article 48, it also describes that we have to save our earth and environment. But what causes endless anguish is that fact that laws never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution. As it was said by the writer, that India is well known for breaking the laws. Here are some laws applied but was broken by the people of India, as casteism, untouchability is forbidden in Constitution, but we always see in our society these impression of this very type curses. A recent report of our Parliament Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India forests over the last 4 decades. India, according to the reliable data, is losing its forests at the rate of 3.7 million per acre. According to the reports, India is losing 3.7 million acre forest every year. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. According to government record, it is more than 8 times given record. Means to say, Article 48 of the Constitution of India means भारत के संविधान के 48वें अनुच्छेद में यह कहा गया है that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. में कहा गया है कि सरकार को पर्यावरण और इस प्लानेट की सुरक्षा के लिए कार्य करने चाहिए और जंगलों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की रक्षा करनी चाहिए और उसको करने का प्रयास भी करेगी. बट व्हाट काजेज एंडलेस एंगेज इज द फैक्ट. लेकिन कहते हैं कि लेकिन साक्ष्य क्या है, सत्यवाद क्या है, तथ्य क्या है, दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया. कि भारत में ना तो कभी कानून का पालन किया जाता है, ना ही उसको पालन करने के लिए बाध्य ही किया जाता है. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, उदाहरण के लिए जैसे संविधान कहता है, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबलिश्ड. कि जातिगत बातें, अस्पृश्यता की भावना में छुआछूत की बातें और साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए. बट दे फ्लरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन वो कहते हैं कि शर्म की बात है कि संविधान बनने के 44 वर्ष बाद भी आज इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं जिनके लिए संविधान ने मना किया, वही चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं. रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी हैड हाईलाइटेड. अभी एक हाल ही में पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स. मीन्स भारत के वनों के बारे में जो कि पिछले 40 वर्षों से कम होते जा रहे हैं, विनाशकारी रूप से कम हो रहे हैं. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा मीन्स एक साक्ष्यपूर्ण आंकड़ों के अनुसार इज लॉसिंग इस फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन पर एकड़ पर ईयर. मीन्स हर वर्ष 3.7 लाख
एकड़ प्रति वर्ष की दर से भारत के वन कम हो रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजाइंड एज फॉरेस्ट, और कुछ बंजर ज़मीनें जो अधिकांश मात्रा में बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनको वन बताया जाता है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, जबकि वे पहले से ही वृक्ष रहित हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स। और इस प्रकार से जो जंगलों की भूमि कम हो रही है, जो दिए गए आंकड़े हैं उसकी अपेक्षा 8 गुनी ज़्यादा है। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warned that environment has deteriorated so badly that it is critical in many the 88 countries investigated. According to satellite, when it was estimated and it is said that the condition of our planet and our environment is very poor. उपग्रहों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपग्रहों और वायुयानों से लिए गए फ़ोटो और पिक्चर्स के द्वारा यह पता चलता है कि हमारा पर्यावरण बहुत बिगड़ चुका है। उसने कुल मिलाकर आगे 88 देशों का आकलन किया और उसको पता चला कि पर्यावरण की स्थिति गंभीर होती जा रही है, यह बुरी दशा में पहुंच रहा है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मीन्स मानव समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक जो है वह क्या है? जनसंख्या की वृद्धि है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। फर्स्ट बिलियन मीन्स 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचने में मानव समाज को 1 मिलियन ईयर मीन्स 10 लाख वर्ष लगे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। और 1800 शताब्दी तक 1800 वर्ष तक जनसंख्या यही थी। बाय द ईयर 1900 और 1900 तक अ सेकेंड बिलियन वाज एडेड। दूसरी 1 अरब जनसंख्या जुड़ गई। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और अगले 100 वर्षों तक यानी 20वीं शताब्दी तक यह संख्या 3.7 अरब और ऐड हुई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और जब यह ऐसे लिखा गया उस संख्या थी, वह राइटर कहता है पूरे विश्व की जो वर्तमान जनसंख्या थी वह कितनी थी? 5.7 बिलियन मीन्स 5.7 अरब। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 बिलियन। और हर चौथे वर्ष जो विश्व की जनसंख्या है वह 10 लाख बढ़ जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। As it was said by the writer that when income raise, fertility less। कहता है कि जब आय बढ़ती तो आय बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है तो जनसंख्या निश्चित रूप से कम होगी और स्वास्थ्य विकसित होगा। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। इसलिए विकास ही सबसे बड़ा गर्भ निरोधक है। But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues। लेकिन यदि वर्तमान जनसंख्या में इसी प्रकार की वृद्धि होती रही तो विकास संभव ही नहीं हो सकता है। The rich get richer, the rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor। As it says by the writer that rich becomes richer and the poor poorer। Why it is possible? Because they had many children. They think that the number of children get the number of money in future, but it falls their wealth and health also। According to the writer, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। कहते हैं कि अधिक बच्चे होने का मतलब अधिक कार्यकर्ता काम करने वाले नहीं होंगे। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, क्योंकि अधिकांश संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिना काम के हैं, उनके पास काम नहीं है, बेरोजगार हैं। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली एस्ट्रलाइज्ड। और ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि मानव को एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाए। But there is no alternative, no voluntary family planning without introducing an element of coercion। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty।
लेकिन राइटर सुझाता है कि बिना ज़बरदस्ती किए मानव को जनसंख्या की दर कम करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा नहीं होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, तो निश्चित रूप से गरीबी आएगी। और इसीलिए जो राइटर कहता है उसका चयन क्या है, जनसंख्या और गरीबी दूर करने के बीच का चयन उसने लिया है। और इसी से यदि जनसंख्या कम होगी तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, more than the entire population of Africa and South America put together. According to the writer, Africa and South America joint population is above the Indian populations. मीन्स कहने का जितना भारत की जनसंख्या है आज की, जो कि 920 लाख है, वह पूरी अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया would doubt that hope of people would die in their hungry. और ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की स्थिति को नहीं देखा होगा वह यह सोच सकता है कि अवश्य ही भारत में भुखमरी की समस्या होगी। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और तब तक होगी जब तक कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स बढ़ती हुई चिंता। वो कहते हैं कि मैंने पहली बार मानव समाज में इसके प्रति बढ़ती हुई चिंता को देख रहा हूँ। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपुल बट ऑफ द प्लैनेट। न केवल लोगों के बचने का बल्कि अपने ग्रह को भी सुरक्षित करने के बारे में चिंता दिखाई पड़ रही है। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और हम लोगों ने अपने अस्तित्व के बारे में भी विचार करना शुरू कर दिया है। The environment problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future. और जो पर्यावरण की समस्या है वह हमारे भविष्य के लिए संकेत है, हमारे अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में जो हमारे अस्तित्व का खतरा है उसका एक संकेत है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ यूज्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आने वाला समय हमें उत्तरदायित्वों का बोध कराने वाला है, इसलिए हम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत हो जाएं। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, an ecological view seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. And it is said by the writer that we have to think about our whole planet, not in different view but as a whole planet। वो कहते हैं कि हमें हमारी पृथ्वी को अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि एक संपूर्ण ग्रह के रूप में, एक परिवार के रूप में मानने की आवश्यकता है। और ऐसा करके ही हम अपनी पृथ्वी को, इस सुंदर ग्रह को सुरक्षित कर सकते हैं। इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वह कहते हैं कि इस नए युग में, जिम्मेदारी के इस नए युग में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Ullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer. What a transformation would be effected. वो कहते हैं कि किस तरह का परिवर्तन होगा, यह केवल इस बात पर निर्भर है मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन ऑफ डूपोंट, कि अगर अधिकांश संख्या में जो व्यवसायी हैं वह चेयरमैन डूपोंट की बातों को शेयर करें, उनके किए गए कार्यों को, उनके कहे गए शब्दों को माने। हु 5 years ago डिक्लेयर, जिन्होंने 5 वर्ष पहले ही घोषणा की थी कि टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, वह मुख्य पर्यावरण अधिकारी हैं। उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि मैं एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि मैं एक मुख्य पर्यावरण अधिकारी हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, आवर कंटिन्यूज एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस। उन्होंने कहा कि एक श्रेष्ठ व्यवसायी होने के कारण हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए और यही हमारा उत्तरदायित्व है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप्स, और अपने प्रधानमंत्री के समय के कार्यकाल में मार्गरेट थैचर ने जितने भी व्याख्यान दिए थे, जितने भी वक्तव्य दिए थे, नन हैज़ पास टू डेसिबली इन टू द करेंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेस, उनमें से कोई भी अंग्रेजी भाषा में इतना प्रचलित नहीं हुआ
एज हर फेलिसिटियस वर्ड्स, जितना कि उनके ये रोचक शब्द, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, उनका जिनका कहना था कि किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर मालिकाना हक नहीं है। एंड ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टिनेशी, और हम सभी लोग इस पर जीवन जीने के लिए एक मेहमान के समान हैं। एंड विद द फुल ऑफ रिपेयरिंग लीज, और इसलिए इसको पूरी तरह से ठीक करना ही हमारा रेंट है, हमारा किराया है। मीन्स टू से, जैसे हमको यह पृथ्वी मिली थी, हम अपने जाने के बाद उसे ऐसा ही छोड़कर जाएंगे। यही हमारे लिए इस पृथ्वी को दिया जाने वाला रेंट होगा, किराया होगा, क्योंकि हम यहाँ एक किराए के प्राणी के समान हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, यह धरती, उनका कहना था कि यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त हुई है। वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, जबकि क्या है, यह हमें पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं, बल्कि हमें अब यह मानना चाहिए कि हमने इसे अपने आने वाली पीढ़ियों से, अपने बच्चों से इसको हमने यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए उधार में लिया है। अगर ऐसी भावना हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप से हम अपनी पृथ्वी को बचाने में, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने में सफल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, रीड द लेसन विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स।